students, welcome to today's session, Class 5 English First Chapter 2. Class 5 English First Chapter 2. Let's learn pranayam and on to the next paragraph, the third paragraph. Let's read this paragraph first. Pranayam should be done on an empty stomach, preferably in the morning. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. The teacher started listing the steps of pranayam. Let's go through this word meanings first. Empty stomach. What's the meaning of empty stomach? Without taking food. Kali pet. Stomach without taking food. Preferably. Preferably means more suitably. Preferably means more suitably. अधिक अच्छे रूप में. Gap. Gap means time interval. Last meal. Last meal मतलब food taken लास्ट जब हम खाना लास्ट टाइम खाना खाया. Got interested means became more attracted to. Seeking means getting. Permission means allowing to do something. इजाज़त मांगना, right? Listing means to arrange in order. Steps means stages. Okay, let's go through this paragraph. First sentence, pranayam should be done on an empty stomach, preferably in the morning. So we already learned what is pranayam. What is pranayam? Pranayam is control and extension of our breath, and there are so many benefits of pranayam. So now how to do this pranayam? Okay, pranayam should be done on an empty stomach. यानी प्राणायाम खाली पेट किया जाना चाहिए. हाउ टू डू दिस प्राणायाम? प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. यानी प्राणायाम खाली पेट किया जाना चाहिए. प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग. अधिक अच्छा रहेगा जब वो सुबह के समय किया हो तो. ओके, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग. Now always try to do pranayam in the morning. Okay, in an empty stomach. You can also do it in the evening. आप इसे संध्या के समय भी कर सकते हैं. Okay, but लेकिन there should be a gap of 4 hours after the last meal. लेकिन भोजन के बाद 4 घंटे का इंटरवल अवश्य होना चाहिए. ओके, 4. अभी आप लोग ये शाम को भी कर सकता है प्राणायाम. ओके, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला. ओके, सोचो सुबह आपको टाइम नहीं मिला तो क्या कर सकता है? प्राणायाम हम शाम को कर सकता है. लेकिन जो हम खाना खाने के 4 आवर्स के बाद, 4 घंटे के बाद ये प्राणायाम कर सकता है. ओके, शाम को. Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. ओके, अभी शिवम और नितिन को इंटरेस्ट हो गया और क्या किया? योगा टीचर से इजाज़त मांगने के बाद वो ग्रुप में शामिल हो गया. ओके, शिवम और नितिन को बहुत इंटरेस्ट हो गया. ये क्या वो प्राणायाम वो ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के कर रहा है ना, तो वो देखने के बाद उनको भी क्या हो गया? बहुत इच्छा हो रहा है कि उस वो ग्रुप में ज्वाइन होना है. तो बहुत इच्छा हो रहा है. तो वो क्या किया? उधर एक योगा टीचर है, राइट? तो वो क्या किया? उनसे परमिशन लिया. ऐसे ही जाके नहीं बैठा. क्या किया? पहले योगा टीचर से जाके परमिशन मांगा कि हम भी क्या इसमें बैठ सकते हैं क्या? तो परमिशन मांग के शिवम और नितिन ने क्या किया? वो ग्रुप में ज्वाइन किया. द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. और वो टीचर ने क्या किया? प्राणायाम करने के क्रम को, अलग अलग स्टेप्स को
बताना शुरू किया। प्राणायाम ऐसा ही नहीं कर सकता है ना, उसका अलग अलग स्टेप्स होता है, आपको उसको एक एक स्टेप में उसको करना चाहिए। तो वो योगा टीचर ने क्या किया, वो प्राणायाम करने का एक एक स्टेप को लिस्ट आउट करना शुरू किया। ओके, let's go through this paragraph once more. Pranayam should be done on an empty stomach, preferably in the morning. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. The teacher started listing the steps of pranayam. Now let's move on to the questions. Pranayam should be done. Pranayam should be done. There are 4 options: during meals, after meals, before meals, anytime. प्राणायाम कब करना चाहिए? ड्यूरिंग मील्स, आफ्टर मील्स, बिफोर मील्स या एनी टाइम? आंसर इज ऑप्शन सी, बिफोर मील, खाने के पहले। सेकंड क्वेश्चन, हाउ शुड प्राणायाम बी डन? हाउ शुड प्राणायाम बी डन? पैराग्राफ में ढूंढो आंसर क्या है। हाउ शुड प्राणायाम बी डन? प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम कैसे करना चाहिए? शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन शुड वी डू प्राणायाम? व्हेन शुड वी डू प्राणायाम? वी शुड डू प्राणायाम प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग। ना कब करना चाहिए? प्रिफरेबली कब करना चाहिए? इन द मॉर्निंग. इफ नॉट पॉसिबल यू कैन डू इट इन द इवनिंग. Okay, after the and there should be a gap of 4 hours after the last meal. What should be kept in mind if one perform pranayam in the evening? अगर प्राणायाम शाम को कर रहे हैं तो एक बात मन में रखना है, वो क्या है? There should be a gap of 4 hours after the last meal. Fifth question, what did the teacher begin to list? टीचर ने क्या शुरू किया? क्या लिस्ट करना शुरू किया? द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. व्हाट डिड नितिन एंड शिवम जॉइन? शिवम और नितिन ने कहाँ पे ज्वाइन किया? शिवम एंड नितिन जॉइन द ग्रुप में ज्वाइन किया. लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम whom डिड दे सीक परमिशन? शिवम और नितिन किससे परमिशन मांगा? They sought permission from the yoga teacher. Okay, आप लोग ये थर्ड पैराग्राफ अच्छे से रीड करना and learn these word meanings and the question answers. Okay, thank you.